अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी अनप्लग्ड, जहां हम साइकोलॉजी के बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उनके बारे में अवेयरनेस रेज करते हैं। आई एम योर होस्ट सामिया अवान एंड आज हमारे पास अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल गेस्ट हैं सर यासिर अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ओके सर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट इन देयर प्रैक्टिकल फील्ड। You're a clinical psychologist with almost 5 years experience. तो आपके personal experience के हिसाब से what are the major problems that psychologists are facing right now? First of all, I would like to thank you for having me in this show, and I'm glad to be here. The first thing that I will share with you is that is the maintaining boundaries and burnout. Actually, ये जो issue है maintaining boundaries का when we are dealing with our clients. Most of psychologists get emotionally involved with the client, ठीक है, and that takes a lot of our time and energy. So we have to maintain that boundary where we are stop, so that we should be less stressed and less fatigued, and we should deal with more and more clients at the same time. So this was the main concern that I feel is an issue. The second issue is that when we are in practice, we are as we are holed up with all the work, so we have less time to study new researches and new topics and new techniques, learn about the new ways of dealing with the clients. So that part I believe कि ये इसमें हमारी थोड़ी वो हो जाती है, mean lacking हो जाती है when we are dealing. The other thing is that the cultural issues. For example, when I see clients, some are from Punjab, some are from Sindh. So there are many cultural barriers when we are dealing with them. So that's the third main point that I believe. Although there are many other issues that we faced, well, these were the main three that I want to ask about. पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें specifically. Okay sir, so as you mentioned कि as for example psychologist जो होता है, they need to care about their clients. तो ये एक boundary set करने का issue is big. Because a psychologist has to deal with clients of all nature, from small children to hardened criminals. They just have a diverse range of clients. Exactly. Even you must have experienced that while you practice in the hospital. So sir, how do we set that specific boundary? How do we make sure कि एक psychologist की अपनी जो mental health और well-being है वो maintain रहे? इसमें ये देखना है कि फर्स्ट थिंग कि भी हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए जो है हम अपने जो प्रॉपर वेज हैं, द वेज ऑफ डीलिंग विद अस, मीन द टाइम दैट वी आर गिविंग टू आवर वर्क, इट शुड नॉट बी सो मच बर्डन टू अस, बट वी शुड नॉट रीच दैट लेवल ऑफ बर्नआउट. When we are reaching that level of burnout and the clients are more and we cannot deal with all of them, so यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारा बर्नआउट पॉइंट कहाँ पे आ गया, और फिर हम जो और एक्सेसिव क्लाइंट्स हैं उनको हम अपने कुलीग के साथ शेयर करें उनके इश्यूज, या उनको हम रेफ़र कर दें, क्योंकि जब बर्नआउट आ जाएगा फिर हम अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर जो है अपना काम नहीं दे सकेंगे. एक तो ये इससे जो है दिस इशू कैन बी addressed. So what kind of mental health issues are you seeing more prominently in the Pakistani populace? The most of the cases that I am been dealing in Multan and Lahore, mostly I see the client of depression first, then I see the client of anxiety disorder. As you know, there are various kind of anxiety disorders. So the first is depression, then anxiety disorder, and the third major I see is OCD. OCD is also commonly present in our culture. Okay, so sir, even though you must have a lot of clients, but still Pakistan में there's a certain stigma around going to therapy or taking counseling. हमारे society में when someone is going to counseling, they're just considered this term कि वो पागल है, or maybe they're just crazy because they're going to see a psychologist. Even though बाहर की countries ने इस चीज़ के लिए काफ़ी acceptance अब start कर दी है, so what kind of steps can we take कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ की थोड़ी सी एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़े? हाँ जी, ये सबसे जो मेजर इशू है, दिस इज़ अबाउट द
the stigma about the mental health. As you know that कि जो बाहर countries हैं, western जो countries हैं, वहाँ पे भी पहले बहुत ज़्यादा stigma था, अब वहाँ काफ़ी हद तक जो है वो almost eliminate हो गया. While in our country ये जो stigma है ये अभी still is at a very high level, especially in regions where the education level of the community is low. For example, if I talk about this area, Multan and the surrounding areas, here this issue is very much present. And if I talk about Lahore or Islamabad, this stigma is a bit less there. Means people come and consult with the psychologist. So you're saying illiteracy is one of the main Literacy elements. is one of the major issue. When the people will be more literate, then they will believe about this thing that we should come and take the therapies if they required it. Because the healthy lifestyle, it does start with a healthy mind. Exactly. Okay, so other than this, what do you think, what kind of main steps can you as a psychologist or I as a psychology student, what kind of steps can we take to make sure कि आगे हमारी लाइफ में इतने हमें प्रॉब्लम्स फेस ना करें एज अ साइकोलॉजिस्ट? इसमें ये जो द थिंग दैट आई फील कि जो साइकोलॉजी है ये बेसिक लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए. मींस व्हेन द चाइल्ड इज इन स्कूल देयर शुड बी प्रॉपर psychologist there, a clinical psychologist or a counselor should be there. And when the child is facing any issue or the psychologist feels that this child could have any issues, for example anxiety issues or depression in his future life, then those issues can be resolved at the earliest point. If they are resolved at the earliest point, then it is a possibility that our new coming generation may not face these issues, a lot more of these issues. ओके सर, अब हम लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक. बिफोर ब्रेक हमने काफ़ी मेजर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अ साइकोलॉजिस्ट इज़ फेसिंग इन देयर प्रैक्टिकल फील्ड, जिसमें सर ने काफ़ी मेजर पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं हमारे लिए. नाउ वी आर गोना कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड वी आर गोना डिस्कस सम मोर. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने. बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं. मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है. वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं. मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ. और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी. हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप ईज़िली मिल जाता है. प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है. ईज़िली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं. इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर. तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है. 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है. यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे. ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है. बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ.
मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने आईएसपी को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। Assalamu alaikum नाज़रीन and welcome back from the break. I'm your host सामिया अवान and हम सर यासिर अली खान से डिस्कस कर रहे थे about all the problems that psychologists are facing in their practical field. अब हमने कुछ major questions तो पहले डिस्कस कर लिए हैं. Now moving on, we are going to ask him some more, including the fact कि सर, as you have seen, Pakistani society as a whole, we are a big fan of taking medicines. हमें कोई छोटा सा भी इशू होता है, हम रश करते हैं towards a doctor, actual doctor, physiological, जो हमें symptomatic treatment देता है हमेशा. So we just kind of discard the fact that we have actual mental needs, या हमारी mental health कैसे affect कर रही है हमारी physical health को. So what do you think about that? इसमें ये जो आप इशू को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत मतलब ब्रॉड टॉपिक है। इसमें ये है कि भी जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है ना, तो वो पहले किसी बायोलॉजिकल किसी डॉक्टर के पास उसने बहुत सारे अपना वो दिए होते हैं, मतलब उसने बहुत सारी मेडिकेशन यूज़ की होती है। कॉमनली क्या होता है कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एनजाइटी डिसऑर्डर है, कोई भी वो मतलब वो हो सकता है, वो जनरलाइज एनजाइटी हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो पहले वो क्या करेंगे, वो किसी बायोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको बहुत सारी मेडिकेशन देंगे। हो सकता है कि वो उसको हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी ड्रग्स दें, ठीक है ना, और भी बहुत सारी वो मेडिकेशन वो यूज़ करेंगे। जो लास्टली वो क्या करेंगे, वो उसको स्लीपिंग पिल्स देंगे ताकि वो सो जाए, जो उसके इशू हैं वो मतलब वो प्रेस हो जाए, ठीक है, जब उसको नींद आएगी। लेकिन वो इश्यूज़ का हल नहीं होता, क्योंकि जो हल है वो उसके माइंड के अंदर है कि वो क्या इश्यूज़ फेस कर रहा है अपने अंदर ही अंदर। तो उन इशू को एड्रेस करने के लिए उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आना ज़रूरी होता है, या वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट करे। तो पहले जब वो असल में एक स्टिग्मा एक ये भी है कि भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे कंट्री में, उनको कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन अ सेंस नहीं दी जा रही होती, क्योंकि वो कहते हैं बस ये तो सिर्फ बातों से ही अपना करते हैं, तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। इसलिए वो कहते हैं जो ड्रग थेरेपी है वही ही सिर्फ एक राइट चॉइस है। इसका एक वजह ये भी है क्योंकि जो ड्रग हैं वो फ़ौरन से ही अपना असर या इम्पैक्ट शो करते हैं। जो हमारी थेरेपी है, इट एज यू नो इट टेक्स टाइम, लेकिन जो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और जो इशू को वो एड्रेस करेगी। ऑन द अदर हैंड जो ड्रग्स हैं वो सिर्फ मतलब शॉर्ट टर्म ही ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाते हैं, एडिक्शन, एंड इट कैन इवन, आई हैव सीन कि इवन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में ऑफन सुसाइडल टेंडेंसीज आर लिस्टेड। सो इट्स आई थिंक इट्स वेरी हार्ड कि इवन छोटी छोटी चीज़ों पे जो ड्रग्स दे देने का ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज समथिंग वी एज साइकोलॉजिस्ट वी रियली नीड टू ओवरकम दैट। एग्जैक्टली। सो ऑल्सो एज यू नो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो जैसे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे स्पेशली माइनर्स, तो उनकी जो फैमिली आपसे क्वेश्चंस करती होगी, दे आर गोना आस्क यू टू वायलेट दो स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट दैट अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर हैज़। सो हाउ डू यू डील विद दैट एथिकल डिलेमा? असल में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है व्हाइल वी आर इन आवर प्रैक्टिस, क्योंकि जब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं, कोई अगर माइनर भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, तो वो मतलब उनके इश्यूज ऐसे होते हैं जो वो अपना उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होते, ठीक है ना, तो वो लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी जब उनका वो अपना बाद में वो पूछते हैं हमारे से कि भी क्या इश्यूज हैं हमारे बच्चे को, क्यों ये इस तरह बिहेव कर रहा है, या इसका ये मतलब कोई इशू है तो क्यों ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो चाह रहे हैं कि भी हम उनकी चीज़ों को डिस्क्लोज करें। तो इसके लिए फिर एक तो ये है जो प्रॉपर वे है, एथिकल वे, हम पहले इन्फॉर्म कॉन्सेंट लें अपने क्लाइंट से, कि हम उन्हें बताएं कि भी हम आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आपके पेरेंट्स के साथ या जो उनके गार्डियन हैं उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, कि हम करेंगे। तो वो एक पहले बाउंड्री एक सेट हुई हो। और दूसरा, हम उनके साथ कम्युनिकेट सिर्फ वो टू द पॉइंट बातें बताएं, मतलब हम उनकी टोटल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर ना करें, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहें जो हमारा क्लाइंट है, और जो उनके पेरेंट्स है या गार्डियन, उनको भी कुछ आइडिया हो जाए कि उनका जो बच्चा है वो किस तरह के इशू के साथ वो सफ़र कर रहा है या वो फेस कर रहा है।
Sir, so you're a psychologist who has had like 5 years experience. So has it been in only one place or have you been in multiple hospitals or clinics? I work 2 years at Lahore and I have worked at three hospitals at Lahore. One was PMH, Punjab Institute of Mental Health, and the other were 2 private hospitals. I have practiced there for 2 years and then I came back to Multan as it was my hometown. So I have been practicing in 2 hospitals. At current, I am working with Sleem Hospital at Chowk, Bahadurpur. So what kind of career opportunities do you see for future psychologists? What are the payment packages? What are the specific government jobs available as well as private jobs for psychologists? Exactly. गवर्नमेंट जॉब मीन्स जो हमारे कल्चर में हमारे कंट्री में आती तो हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होंगे. मीन्स व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट द PPSC there are like 10,000 candidates and there are only 80 to 100 seats and the remaining will be left That over. is extremely limited. उसके फिर जो है जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनके पैकेजेस फिर भी एक्सेप्टेबल हैं लेकिन जो प्राइवेट जॉब में जो आपको साइकोलॉजिस्ट हायर करेंगे एक तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन आपको देंगे मेरे जो विल वेरी ओवर बर्डन देयर और जो वो पैकेज ऑफर करेंगे दैट विल बी ड्रामेटिकली वेरी लो मीन वो इतना लो होगा कि भी मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वहाँ काम करना ही नहीं चाहेंगे. So this has been very enlightening. Major issue. This has been very enlightening. Although I still believe that, inshallah, in the future we're going to improve our society. We can hope for the best. We can hope for the best. But इसके साथ ही हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं. And I think with me आप सबने भी सर यासिर से काफ़ी कुछ सीखा होगा. And now we have learned what kind of problems a psychologist is facing. Even if you are a psychology student or a psychologist or you are from some other discipline, please feel welcome to consider therapy, consider counseling for your future needs, for your mental health or any issues that you face. For further videos about psychology, do visit our ISP official channel where we have an official playlist for Psychology Unplugged with more than 20 videos. इसके साथ आप मुझे सामिया वान अपनी होस्ट को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.